Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 1. We are going to start unit 11. Its title is Stormy Weather. First, we'll discuss the SLO based lecture division, which is like this, my dear fellow teachers and my dear students. This is the SLO based lecture division for this poem. First, we'll discuss about it and then we'll discuss what this poem is all about. So, in lecture 1, under the title of grammar, we'll learn about naming words and we'll cover the SLO to recognize the different categories of naming words, recognize and change the number of simple naming words by adding or removing S, singular and plural. Recognize the different objects at home. Lecture 2, under the title of pronunciation skill, we'll learn about rhyming words and we'll cover the SLO to identify one syllable words that rhyme. Lecture 3, we'll read and understand the poem and we'll cover the SLO to recite poems or nursery rhymes with actions. Lecture 4, under the title of pronunciation skills, we learn as letters of a word change, so do the sound. And we'll cover the SLO to recognize that as letters of words change, so do the sounds. Lecture 5, under the title of listening and speaking, we learn to listen and respond to a few commands. And we'll cover the SLO to listen and respond to a few commands. Lecture 6, under the title of writing, we learn to use naming and describing words and we'll cover the SLOs to point out, name some common objects in a picture or a photograph, say a word or two or a sentence about them, recognize the different categories of naming words, identify and revise written work for spelling and punctuation. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. The title of this poem is Stormy Weather. Its theme is nature and its sub-theme is inanimate. Yes, my dear children, what does nature and inanimate mean? बेटा नेचर का मतलब है हर वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई है जो कुदरती है, और उसमें जब हम इनएनिमेट कहते हैं तो वो चीज़ें जो बेजान हैं, क्योंकि हमें पता है अल्लाह ताला ने जानदार और बेजान सब चीज़ें बनाई हैं। तो इनएनिमेट उन चीज़ों को कहते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं लेकिन वो जानदार नहीं हैं, जैसे पहाड़, बादल, हवा, पानी, मौसम, बारिश, ये सब चीज़ें, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्रिएट की हैं लेकिन ये जानदार नहीं हैं, तो इनको इनएनिमेट कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी इस पोम में किसी इनएनिमेट चीज़ की बात है और वो टाइटल से हमें क्या पता चल रहा है, स्टॉर्मी वेदर, तूफानी मौसम, बारिश वाला मौसम। तो यहाँ पर जो इनएनिमेट चीज़ डिस्कस हुई है वो क्या है, मौसम। लेट्स सी उस मौसम को किस तरह से पोइट ने एक्सप्लेन किया है। When I hear a pitter pat against my window pane, I do not frown or mope about, for I just love the rain. जी, तो शायर ने रेन यानी कि बारिश का जिक्र किया है और क्या कहा है कि जब मैं पिटर पैट, क्या होता है बेटा, पिटर पैट का मतलब है जैसे किसी भी चीज़ की ठक ठक ठक, टिप टिप टिप, ये इस तरह की आवाज़ें जो है उसके लिए पिटर पैट का वर्ड यूज़ होता है। तो पिटर पैट जब बारिश होती है तो कैसी टिप 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 आवाज़ आती है ना। तो शायर ने कहा कि जब मेरी खिड़की के शीशे पर, विंडो पे, खिड़की के शीशे पर टिप 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 की आवाज़ आती है तो मैं बिल्कुल भी, फ्राउन का मतलब है गुस्सा करना, किसी चीज़ पर बुरे बुरे मुंह बना रहे हैं, किसी चीज़ को डिसलाइक करना। तो शायर ने कहा मैं उसको बिल्कुल डिसलाइक नहीं करता, आई डोंट फ्राउन, मैं मुंह चेहरे नहीं बनाता, मैं गुस्सा नहीं करता, और मोप अबाउट, ना ही मैं जल्दी से मोप पकड़ के सफाई करना शुरू कर देता हूँ। नो, आई डोंट डू दैट। वाई? बिकॉज फॉर आई जस्ट लव द रेन, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। आपको भी बारिश पसंद है? वेरी गुड बेटा, बच्चों को बारिश पसंद होती है
और अब देखते हैं कि शायर ने आगे क्या कहा, वो बारिश में क्या करते हैं. I rush to put my rain boots on, my spirits start to soar. I grab my red umbrella and go running out the door. क्या कहा उसने, मैं जल्दी से, I rush, मैं जल्दी से, to put my rain boots, मैं अपने जल्दी से जाकर भाग कर जाता हूँ, अपने रेन बूट्स पहनता हूँ, और my spirit starts to soar. स्पिरिट का क्या मतलब है, रूह, और सोर का क्या मतलब, ऊंचा उड़ना, जैसे बर्ड्स उड़ते हुए ऊपर जाते हैं. तो स्पिरिट सोर का मतलब ये है कि मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, मैं इनरली मैं बहुत ऊंचा उड़ने लगता हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ. आई ग्रैब माई रेड अम्ब्रेला, मैं जल्दी से, ग्रैब का मतलब है जल्दी से किसी चीज को पकड़ना, तो मैं जल्दी से अपनी सुर्ख छतरी को पकड़ता हूँ. एंड गो रनिंग आउट द डोर, और मैं भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ. आई फाइंड अ ग्रेट बिग puddle and I jump with a splatter. It's muddy and it's very wet. To me it does not matter. क्या है, उसने कहा आई फाइंड अ ग्रेट बिग puddle. और puddle क्या होता है बेटा, जब बारिश होती है पानी के साथ घड़ों में पानी जमा हो जाता है, तो वो मिट्टी और पानी मिक्स होकर जो बनता है उसको puddle कहते हैं. उसने कहा कि मुझे जहां पर भी वो पानी खड़ा नजर आता है, आई जंप इन विद अ स्प्लैटर, तो मैं छलांग मारकर उसमें कूद जाता हूँ. इट्स मडी, अगरचे ये मट्टी वाला गदला होता है, मट्टी वाला होता है, एंड इट्स वेरी वेट, और ये बहुत गीला, जाहिर है पानी है तो बहुत गीला है. बट टू मी इट डज नॉट मैटर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अपने घर से बाहर निकला ही बारिश को एंजॉय करने के लिए हूँ. राइट, सो दिस इज हाउ शायर ने अल्लाह ताला की बनाई हुई बारिश के बारे में अपने तासुरात बताए हैं, और ये बताया है कि वो इस बारिश को किस तरह से एंजॉय करते हैं. तो बेटा बारिश को ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, लेकिन जब भी आप, जैसे ये शायर ने कहा मैं बाहर भाग जाता हूँ, अगर आप बाहर जाएं तो बी वेरी केयरफुल, बी वॉचफुल. आपने बिजली के जो पोल्स होते हैं उनके पास नहीं जाना. अगर कोई ऐसी जगह है आपको नहीं पता इसमें कितना गहरा पानी है, आपने उसमें नहीं उतरना. बेटा हर चीज़ में हमने बहुत केयरफुल रहना होता है, और अपनी जो हमारी सेफ्टी है उसका ध्यान रखना है. और मैं तो बल्कि आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी छोटे हैं, अकेले आपने बाहर जाना ही नहीं है. इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड, गो विद योर बाबा. राइट, और बारिश को हमें ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. बारिश अल्लाह की बनाई हुई एक बहुत प्यारी नेमत है, और आपको पता है कि बारिश का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है. यू वांट टू सी दैट, यू सी. अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल-नहल आयत नंबर 65 में बताते हैं, एंड अल्लाह हैज सेंट डाउन रेन फ्रॉम द स्काई एंड गिवन लाइफ देयरबाय टू द अर्थ आफ्टर इट्स लाइफलेसनेस. तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाते हैं, और जो ज़मीन है उसको जिंदगी मिलती है. इंडीड इट इज़ दैट इज़ अ साइन फॉर अ पीपल हु लिसन. तो ये यकीनन उन लोगों के लिए एक निशानी है जो सुनते हैं. तो बेटा जब भी बारिश होती है, आपको पता है कि बारिश का वक्त जो है वो दुआ के कबूल होने का भी टाइम होता है. जब भी बारिश होती है अल्लाह ताला का ज़रूर शुक्र अदा करें और ढेर सारी दुआ मांगे, क्योंकि उस वक्त आपकी दुआ कबूल होने का टाइम है. सो दैट्स इट अबाउट रेन एंड नेचर इन एनिमेट. कल इंशाल्लाह हम इसके ग्रामर के फर्स्ट लेक्चर से इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे. आज जो अच्छी बातें हमने सीखी हैं इनको अपने जहन में रखना है, अपने छोटे बहन भाइयों को भी बताएं और ख़ुद भी इन पर अमल करें. So that's it for today. Tomorrow I'll come again with a very interesting lesson. Till that time, keep learning and take very good care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.